hello guys, welcome back to my channel. So I brought a surprise for you all. I am teaching microeconomics in class 12th 2 for MP board students. So are you guys excited? So I'm very excited to make means microeconomics as I have studied microeconomics in my class 11 because I am a CBSE student. So I have brought for MP board, state board students also the classes of microeconomics, humanities. So let's get started. I know you all are excited. So let's get started and let's boost our energy. Okay? So let's start. Okay. So MP board class 12 humanities microeconomics chapter 1 the core of economy part 1 understanding scarcity systems and central problems. And I'm clearing this key if you have a doubt in anything. I am here. Whatever I am teaching you, if you have doubt, just pause the video, take out the comment section and just write the doubt, whatever doubt you have. I will solve each and every doubt. Okay, so let's start. Okay, so we will start with what is economics. Okay, the science of choice. Economics is a social science that investigates how a society manages its limited resources to satisfy unlimited wants. So just imagine, see, I have only 100 rupees with me. Okay, I want to buy three things from that 100 rupees. I want to buy a ticket, movie ticket. I want to buy a bag, and I want to buy a book. So I only have sorry, I have only 100 rupees, and I want to buy these three things from that 100 rupees. Can I buy that? No, it's not possible. I want to sacrifice two things to buy a one particular thing. I want to means the resources are limited. Means I have limited money in my pocket, but I have so many wants. So I want to decide. Means I want to take a decision. ठीक है? So I have limited resources, but I have unlimited wants. Like some things, small kids, just like they cry for the what can I say now? If we take small child with us in a market, if he or she see the toys that are most that he doesn't have, and it's means more attractive, it's more good, he or she will try to buy it. And if we will buy that particular thing for him or her, he or she will cry for another thing also. So this means we have limited resources and unlimited wants. So this is the perfect example for you all, because you can understand, means um, if you are understanding these things from your daily life, you can understand it very well. Believe me, I have done that and I got a good result. So just believe me and do that. Okay, now, so we have studied the science of choice. Economics is a social science that investigates how a society manages its limited resources to satisfy unlimited want. Society have only limited resources and having unlimited wants. So how can the society can make decision? So that's it is discussing about. It is not just about money. It is about the logic of decision making. It's not all about money. Means everything. It's not about money.
it is also about the decision making, that how you make the decision at that part. See, if yeah, and I was having 100 rupees and I want to buy three things. Okay, so now I want to make the decision that on that particular day or some means उस समय मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि भाई मुझे या तो मूवी की टिकट लेनी है या बैग लेना है या बुक लेनी है। उस समय मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्यों उस समय उस पर्टिकुलर समय मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मूवी इम्पोर्टेंट है, बुक इम्पोर्टेंट है या बैग इम्पोर्टेंट है। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए बुक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर मैं लाइक एडल्ट टाइप हूँ तो ऐसा हूँ तो डिसीजन मेकिंग उस टाइम आपको क्या इम्पोर्टेंट, क्या नीड है आपकी, आप वही लोगे। ओके, सो दिस हाउ यू मेक द डिसीजन। ओके, नाउ प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। Now, the problem of scarcity, resources, land, labor, capital are always scarce. Means resources are limited, land, capital, labor, these are limited as compared to human desires. Human desires are also limited. Human desires are also mean what can I say? Human desires are also means scarce. We have to take a decision, and land, labor, capital is also scarce, limited. So the gap between what we have and what we want creates the economic problem. So ये गैप है। अब क्या हमें हमारे पास है और क्या हमें चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पास बैग है और मुझे नया बैग चाहिए और मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं है, आई डोंट हैव नीड, मीन्स मुझे बस ऐसे लेना है, ठीक है। तो वो 100 रुपीज़ मतलब मुझे 3 चीज़ लेनी है, तो या तो अब बैग तो मेरे पास है, देखो मैं समझ आती हूँ। मेरे पास 100 रुपीज़ थे, जो मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दिया, मैं उसी एग्जाम्पल पे चल रही हूँ। 100 रुपीज़ थे मेरे पास, तो मुझे बैग, बुक और एक मूवी टिकट बाय करनी थी। अब मेरे पास बैग तो है, घर पे पड़ा हुआ है, मुझे बस नया बैग चाहिए, नया डिज़ाइन का, तो वो मेरी इतनी नीड नहीं है, मुझे अभी चाहिए, मेरे पास है ना, तो मैं वो तो लूँगी नहीं। अब दूसरा टिकट, अब मूवी टिकट मेरा इतना मन नहीं है कि मैं मूवी देखूं और मेरा उससे टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन बचा बुक। अब मुझे बुक की रिक्वायरमेंट थी उस समय, तो मैं बुक लेने गई। तो ऐसे मैंने क्या किया, सोचा कि मेरे पास क्या है और मुझे क्या चाहिए, ठीक है। तो व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी वांट, ठीक है। तो यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। मैंने सबको हटाया जो मेरे पास है, और जो मुझे चाहिए वो मैंने रखा, तो मुझे ये चाहिए। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। ओके, इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। सो इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, इमरजेंसी ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, ये हमें पढ़ना है। द डुअल रियलिटी, ठीक है। तो हमने देखा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या होती है वो मैं बताती हूँ। जैसे इसमें लिखा है अनलिमिटेड वांट्स, ऑल्टरनेटिव यूजेस, और अनलिमिटेड वांट्स अनलिमिटेड वांट्स, ऑल्टरनेटिव यूजेस एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। ये तीनों चीज़ें इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आती है, ठीक है। तो इमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, क्यों इमरजेंस मतलब इकोनॉमिक्स आई, क्यों हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स हैं, हमारे पास रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस, ये तीन चीज़ें, इसलिए इकोनॉमिक्स इमर्ज हुई, ठीक है। तो द डुअल रियलिटी, unlimited wants, human desires are endless.
ह्यूमन डिज़ायर्स जो है वो एंडलेस है, तो ह्यूमन डिज़ायर्स आर एंडलेस एज सून एज वन इज फुलफिल्ड अनदर अराइजेस। जैसे मैंने आपको वो बेबी का एग्जांपल दिया था कि उसको एक टॉय दिला दिया, अब उसे दूसरा भी चाहिए, उसे फिर दूसरा दिला देंगे, उसको तीसरा भी चाहिए, तीसरा भी चाहिए, चौथा भी दिला। तो भाई बहुत, जैसे हम बोलते हैं ना हमें आईफोन चाहिए, अगर मम्मी पापा ने आईफोन दिला दिया, ठीक है, फिर आईफोन दिला दिया, अब मुझे हमें कार चाहिए, तो भाई रिसोर्सेज लिमिटेड है, तुम अनलिमिटेड वांट्स हो रहे हो, सॉरी, अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है। तो अनलिमिटेड वांट्स ऑल्टरनेटिव यूजेस नेसेसिटी ऑफ चॉइस। ह्यूमन, अब देखो अनलिमिटेड वांट्स में आता है ह्यूमन डिजायर्स आर एंडलेस एज सून एज वन फुलफिल्ड अनदर राइजेस। Alternative uses resources are not only scarce but can be, means resource scarce नहीं है, मतलब means मिल्क है, दूध है, अगर दूध सस्ता हो जाएगा तो आपकी मम्मी दूध से, मेरी मम्मी, आपकी मम्मी दूध से जो भी मिठाइयाँ बनती है वो बनाने लगेगी, कर्ड बना लेंगी, बटर बनाएंगी, टी बनाएंगी, मतलब जिस दूध जहाँ भी यूज़ हो सकता है ना वहाँ पे दूध की हर चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो सबके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्कैर्स बट कैन बी यूज फॉर मैनी थिंग्स। एग्जाम्पल, मिल्क कैन मेक कर्ड, बटर और टी। नेसेसिटी ऑफ चॉइस, वी मस्ट चूज विच यूज ऑफ रिसोर्सेज इज मोस्ट वैल्यूबल एट दिस मूवमेंट। उस मूवमेंट में मेरे लिए क्या ज़रूरी था, उस मूवमेंट में मेरे लिए बुक ज़रूरी थी, इसलिए मैंने बुक बाय की, ठीक है। तो उस एग्जाम्पल से ना मैं आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब आप इकोनॉमिक्स को ना अपनी लाइफ से रिलेट करो। अगर आप अपनी लाइफ से इकोनॉमिक्स को रिलेट करोगे ना तो भाई बहुत आपको मज़ा आएगा इकोनॉमिक्स पढ़ने में। चलो, अब आता है माइक्रोवर्स। इतना समझ में आया सबको, और सबको समझ में आ गया, वेरी गुड, तालियां। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। ओके, माइक्रो वर्सेस मैक्रो पार्ट 1। माइक्रो और मैक्रो, जो हम अभी 12th में एमपी बोर्ड में, अगर आप लोग एमपी बोर्ड में माइक्रो और मैक्रो क्लास 12th में है, और 11th में आई थिंक सो वो इंडियन डेवलपमेंट है, और कौन सी, और स्टैटिस्टिक्स है। सीबीएसई में क्या है, सीबीएसई में माइक्रो और स्टैटिस्टिक्स 11th में है, और 12th में मैक्रो और आईईडी मतलब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है। तो इन्होंने भी एमपी बोर्ड में थोड़ा स्विच कर दिया, ठीक है। तो माइक्रो और मैक्रो, अब इसमें हम डिफरेंट पढ़ते हैं, ये आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं आ सकता है। बेसिक्स ऑफ डिफरेंस, बेसिक्स ऑफ डिफरेंस, ग्रीक ऑरिजिन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो से निकला। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ डिफरेंस, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम थ्योरी भी बोलते हैं। ग्रीक ऑरिजिन, डिराइव फ्रॉम माइक्रोस, माइक्रोस मतलब छोटा, और डिराइव फ्रॉम मैक्रोस मतलब बड़ा, ठीक है। यूनिट ऑफ स्टडी, इंडिविजुअल यूनिट, मतलब अ कंज्यूमर, अ फर्म, ये इकोनॉमी एज अ होल, टोटल एग्रीगेट, ठीक है, टोटल एग्रीगेट्स। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मेन ऑब्जेक्टिव माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, और इसका डिटरमाइनिंग नेशनल इकोनॉमी, पूरी देश। सेंट्रल प्रॉब्लम एलोकेशन, इसका सेंट्रल प्रॉब्लम है एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब अगर एग्जाम्पल्स देखें, हम एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल क्या दूँ मैं, एक और चीज़ मैं बताऊँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी of individual unit of an economy,
और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच एग्रीगेट यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, तो ये इन दोनों की डेफिनेशन एक टाइप से आप समझ लो। ठीक है, और इसमें ये था कि नहीं, वो तो इसमें था। ठीक है, माइक्रो, इसमें देखो, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो ये होता है इनकम एंड आउटपुट, ये नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। ठीक है, इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूँ तो इनकम एंड आउटपुट और इंडिविजुअल इनपुट एंड इंडिविजुअल आउटपुट। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में आउटपुट होंगे, सॉरी आउटपुट बोल रही, एग्जाम्पल होंगे नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, और इसमें एक और चीज़ आएगी टूल्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये नहीं लिखा था तो मैं आपको थोड़ा और बता रही हूँ। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। ओके, अब आता है माइक्रो वर्सेस मैक्रो पार्ट 2। वो पार्ट 1 था, मतलब डिफरेंस। अब पार्ट 2, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड की ऑपरेशनल डिफरेंसेस, छोटे छोटे जो डिफरेंसेस होते हैं वही बता रही हूँ। मैक्रो अप्रोच uses partial equilibrium, check one market while others stay constant। मतलब माइक्रो मतलब छोटा, सारी चीज़ें कांस्टेंट होंगी अगर एक को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सारी चीज़ें कांस्टेंट होगी अगर हम एक को कैलकुलेट कर रहे हैं। ये होता है माइक्रो। मैक्रो का अप्रोच होता है यूजेस जनरल इक्विलिब्रियम, मतलब लुक्स एट द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ऑल मार्केट। जो मार्केट्स इंटरडिपेंडेंसी है ना, उनको देखता है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल्स, माइक्रो लुक्स एट 10% इन्फ्लेशन एप्पल प्राइसेस, एप्पल की जो प्राइस है वो 10% बढ़ गई या घट गई, वो देखता है। और मैक्रो देखता है लुक्स एट 10% इन्फ्लेशन इन द एंटायर कंट्री, एंटायर कंट्री में 10% इन्फ्लेशन ऑफ एप्पल प्राइस, वो एंटायर, ये सिर्फ कहीं, मतलब एक चीज़ को देख रहा है, एप्पल को देख रहा है, तो सारी प्राइजेस कांस्टेंट होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ों को देख रहा है जिसमें 10% इन्फ्लेशन हुआ है, सारी चीज़ों को देख रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया, मैक्रो और माइक्रो। ठीक है, अब आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी। थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। What is economy? An economy is a system which provides people the means to work and to earn a living. इकोनॉमी क्या होता है, एक इकोनॉमी क्या होती है? तो एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड टू अर्न द लिविंग, उनकी खुद की लिविंग अर्न करने। सो व्हाट इज एन इकोनॉमी, इधर ही याद कर लो। तो मैं चाहती हूँ कि आपके इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ, मतलब पूरे सब्जेक्ट में मैं आपके 100 आउट ऑफ 100 लाऊँ। तो जस्ट मतलब मैं इकोनॉमिक्स तो आपको हाथ में करवाना चाहती हूँ कि फिंगर टिप्स पे आपको याद हो जाए, तो इसलिए इधर ही याद करो व्हाट इज इकोनॉमी। अगर नहीं हो रहा तो वीडियो पॉज करो और लिख के याद करो। ठीक है, व्हाट इज एन इकोनॉमी? एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड टू अर्न अ लिविंग। फिर से, व्हाट इज एन इकोनॉमी? एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल the means to work and to earn a living. Okay. It is the collection of production, consumption and exchange activities in a specific area. कुछ एरियाज में कलेक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्शन, कलेक्ट कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो या एक्सचेंज कर रहे हो यहाँ से वहाँ। ठीक है, देखिए, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन मतलब कि आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हो, बना रहे हो और बेच रहे हो। कंजम्पशन मतलब कि आप उसको खरीद रहे हो, अगर वो खाने की चीज़ है जैसे पेस्ट्री, केक, तो उसको आप खा रहे हो। इन्वेस्टमेंट मतलब आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो,
उस पर्टिकुलर चीज़ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे गोल्ड पे हम इन्वेस्ट करते हैं ना, वैसे। ठीक है, तो व्हाट इज एन इकोनॉमी? एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स पीपल the work, the means to work and to earn a living. Okay, it is the collection of production, consumption, and exchange of activities in specific areas. Let's move on. इकोनॉमिक सिस्टम कंपैरिजन। हम कंपैरिजन कर रहे हैं इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। हमारी इंडिया क्या है, मिक्स्ड, क्या कौन सी इकोनॉमी है? क्या जब हमने पॉलिटिकल नहीं, पॉलिसाइज नहीं पढ़ा शायद, हमारे इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट या मिक्स्ड? पंडित जवाहरलाल नेहरू किस पे एग्री किए थे कि कौन सी इकोनॉमी चाहते हैं वो? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कैपिटलिस्ट के भी खिलाफ थे, सोशलिस्ट के भी खिलाफ थे। वो मतलब अगर पूरी प्राइवेट सेक्टर पे देखो, कैपिटलिस्ट मतलब पूरे प्राइवेट सेक्टर अपनी पावर है अपने पास। तो अगर प्राइवेट सेक्टर सब ले लेगा तो वो सिर्फ अपनी प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। ठीक है, सोशलिस्ट गवर्नमेंट के हाथों में सब आ जाएगा, स्टेट के हाथों में सब आ जाएगा, तो भी थोड़ा सा गलत ही है। मतलब फिर लोग प्रोटेस्ट करने लगेंगे कि थोड़ी पावर हमें भी चाहिए। ठीक है, और अगर मिक्स्ड होगी मतलब दो बंटवारा होगा, मतलब दोनों में प्राइवेट मतलब लोगों के पास भी और पब्लिक के पास भी, दोनों के पास मतलब गवर्नमेंट के पास भी और प्राइवेट सेक्टर के पास भी, दोनों के पास पावर होगी तो अपनी इकोनॉमी अच्छे से चलेगी। तो जवाहरलाल नेहरू ने मिक्स्ड इकोनॉमी चूज की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फ्री इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी चूज की थी कि प्राइवेट सेक्टर के पास भी हो और गवर्नमेंट के पास भी हो पावर, दोनों के पास में हो। ठीक है, तो हम ये पढ़ते हैं, और क्या पढ़ेंगे हम? इकोनॉमिक सिस्टम्स कंपैरिजन। फीचर, ओनरशिप, प्राइवेट जो कैपिटलिस्ट, मार्केट, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, सोशलिस्ट, प्लान्ड, गवर्नमेंट या स्टेट। मिक्स्ड इकोनॉमी, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों प्राइवेट और पब्लिक, जैसे मैंने आपको बताया। मेन मोटिव, कैपिटलिज्म का मेन मोटिव जैसे मैंने बताया, प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, हाँ मैक्सिमाइजेशन। फिर सोशलिस्ट का सोशल वेलफेयर, वो पॉवर्टी और सबको हटाने की कोशिश करें। और मिक्स्ड इकोनॉमी में प्रॉफिट और प्लस वेलफेयर दोनों आ रहा है, तो वो बहुत अच्छा है। अकेला प्रॉफिट और अकेला सोशल वेलफेयर नहीं चल पाएगा, तो उन्होंने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स्ड इकोनॉमी ले ली। प्राइस कंट्रोल, मार्केट फोर्सेस, कैपिटलिस्ट में मार्केट फोर्सेस, सोशलिस्ट में कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ये जो है वो प्राइवेट सेक्टर ही कर रहा है, तो मार्केट फोर्स कर रहा है, प्रॉफिट लाओ ये बोल रहा है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में मार्केट प्लस रेगुलेशंस, मार्केट भी है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रेगुलेशंस भी है। अगर कैपिटलिस्ट होता सब, जैसे यूएसए और यूके है, तो वहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग ज़्यादा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा है, लोग प्रॉफिट कमा रहे ज़्यादा, पॉवर्टी और ये सब नहीं देख रहे लोग प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए सोच रहे हैं। पर हम लोग, मार्केट भी है हमारे पास, पर इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ रेगुलेशंस है। ठीक है, और मार्केट पर, ठीक है। एग्जाम्पल्स, कैपिटलिस्ट में यूएसए और यूके, सोशलिस्ट में नॉर्थ कोरिया और चाइना, मिक्स्ड इकोनॉमी में इंडिया। So this much is done. All clear? Very good. Now let's move on. 1.6 central problems.
So what are the central problems? ठीक है, the problem of allocation. Okay. So what are the central problems? So there are three central problems: what to produce, how to produce, and for whom to produce. इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझ में आई? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम अनलिमिटेड ह्यूमन wants, limited resources, or unlimited human wants, limited resources, और alternative uses. सेंट्रल प्रॉब्लम्स में व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम किसके लिए बनाएं. मैं किसके लिए नहीं, सॉरी हम डिकोडिंग विच गुड्स एंड इन व्हाट क्वांटिटीज टू प्रोड्यूस. कौन से गुड्स क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है. कंज्यूमर वर्सेस कैपिटल गुड्स. जो कंज्यूम मतलब राइस, वीट, ये सब बनाना है, या मशीन गुड्स, मशीन हथौड़ा और ये सब बनाना है. क्या बनाना है तो पहले, और कितनी क्वांटिटी में बताना, तो पहले ये तो पता चले. जैसे आपकी मम्मी घर पे राइस बनाती होगी, राइस दाल और सब जाती, तो वो इस हिसाब से बनाती है ना कि कितनी फैमिली मतलब कितने लोग रहते हैं परिवार में, उसके हिसाब से बनाती है. उसके हिसाब से बनाती है, मतलब वो क्वांटिटी और क्या बनाना है तो वो देख कर बनाती है. तो ये है व्हाट टू प्रोड्यूस, डिकोडिंग विच गुड्स एंड इन व्हाट क्वांटिटी इज टू बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, कंज्यूमर वर्सेस कैपिटल गुड्स. सो द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन. फिर आता है हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस में आता है अ प्रॉब्लम ऑफ टेक्निक चॉइस. टेक्निक चॉइस मतलब कि लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव. अब देखो वो राइस, देखो आपकी मम्मी राइस बना रही है फॉर एग्जाम्पल, तो आप अगर मम्मा राइस बना रही है तो वो उसके हिसाब से बनाएंगे कि फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कितनी क्वांटिटी में बनाना है और क्या बनाना है, वो तो उन्होंने सोच रखा है कितनी क्वांटिटी में बनाना है प्रोड्यूस करने के लिए. अब वो लेबर से बनवाई, खुद बना रही है, या तो वो खुद बना रही है या किसी मेड को रखा है उन्होंने बनाने के लिए. ठीक है, तो दोनों ही, अगर वो खुद भी बनाएंगे तो भी लेबर इंटेंसिव, मैनुअल हाथ से ही काम हो रहा है, मेड भी बुला रही है तो भी वो हाथ से ही काम कर रही है, तो लेबर इंटेंसिव. कैपिटल इंटेंसिव अगर वो किसी मशीन से बना रही है, तो वैसे मशीन से नहीं बनता. ठीक है, तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये हाँ जस्टिफाइड एग्जाम्पल है. ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव हमने इसका क्या किया, हमने इधर यूज़ किया लेबर इंटेंसिव, यूज फॉर मैनुअल लेबर. कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीनरी, टूल्स और ये सब जो यूएसए और इन सब में यूज़ होता है, क्योंकि इंडिया में लेबर ज़्यादा है तो इसलिए हम लेबर इंटेंसिव काम करते हैं. फॉर whom टू प्रोड्यूस, मम्मी किसके लिए बना रही है, मम्मी हम लोगों अपने परिवार के लिए बना रही है. ठीक है, अपने लोगों के लिए बना रही है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए बना रही है. ठीक है, तो वैसे ही इसमें मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कि कितने लोग किसके लिए बना रही है, तो हमारे लिए बना रही है. खाना हमें तो हमारे लिए बना रही है. ठीक है, तो वैसे ही वो लोग मतलब जो वो लोग हैं जो वो ज़्यादा पुअर के मतलब जो लोग ज़्यादा पुअर है या बहुत रिच है या मिडिल क्लास है, उनके लिए बनाए या किसके लिए बनाए, तो ये चूज़ करना है. मतलब पुअर वर्सेस रिच, ये चूज़ करता है कि भाई पुअर के लिए बनाए या रिच के लिए बनाए. A problem of income distribution. Deciding who will get the goods depends on purchasing power और social equity. या तो purchasing power या social equity. Backward है, पुअर के लिए बनाए या रिच, वो लिखा है. ठीक है, पुअर के लिए बनाए या रिच के लिए बनाए. फॉर whom to produce. इतना समझ में आया, सेंट्रल प्रॉब्लम समझ में आ गया. What to produce, how to produce, for whom to produce. और इकोनॉमिक प्रॉब्लम अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज और ऑल्टरनेटिव यूजेस. समझ में आया, दोनों चीज़ें क्लियर रखना, क्योंकि इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स, क्योंकि बहुत रिपीट होता है और आता ही है. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन. कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ लेना, कमेंट सेशन में लिख देना. कोई भी डाउट हो, वीडियो पॉज
नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लेना, फिर वीडियो चलाना, ठीक है। अरे अरे हाँ, अब द पीपीएफ का इंट्रोडक्शन दे दूँ। पीपीएफ मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। पीपीएफ क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। अ कर्व शोइंग द मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ, ये सिर्फ 2 गुड्स के बारे में बताता है, ठीक है। अब ठीक है, अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीएफ, पीपीसी कुछ भी बुला लो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंट, बहुत सारे नाम है, आप बुला सकते हो। अगर मैम ने दे दिया पीपीसी लो तो आप कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज़ है। पीपीएफ, पीपीसी, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, सब एक ही चीज़ है, ठीक है, सब यही है। तो अ कर्व, ये कर्व है, ये दिख रहा आपको, दिख रहा होगा आपको। अरे यार मैं चला क्यों जाता है? गुड, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये कर्व दिख, अरे ये कर्व दिख रहा है। तो दिस इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीएफ। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखे। ये देखो, ये जो कर्व है ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब मैं बताऊंगी लाइंस क्यों है और ये सब जो भी है मैं बताती हूँ, ठीक है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, अ कर्व शोइंग द मैक्स, ये जो कर्व है ना ये हमें बता रहा है द मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 गुड्स, 2 गुड्स के बीच में मैक्सिमम कॉम्बिनेशन, और हम 2 गुड्स ही लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा लेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम 2 गुड्स ही लेते हैं। तो इसलिए अ कर्व शोइंग द मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। रिसोर्सेज और उतने रिसोर्सेज, उतनी टेक्नोलॉजी से जो चीज़ें बन सकती हैं वो इस कर्व पे शो करती है। समझ में आया? देखो, अगर फॉर एग्जांपल आटा है, आटा से रोटी भी पराठे भी बन सकते हैं और पूड़ी भी बन सकते, नहीं, आटा से रोटी भी बन सकते, पराठे भी बन सकते हैं और रोटी भी बन सकती है। तो और आटा आपने गूंदा है तो वो क्या है? 2 गुड्स बना रहे हो और आपके पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी उतनी है, तो आप उससे कितने पराठे और कितनी रोटी बनाओगे? ऐसे बोलते ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। शाहरुख खान ने बोला था, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, ऐसे बोला था। तो कितने पराठे आप सेक्रीफाइस करोगे रोटी को बनाने के लिए, ठीक है। नहीं, वेट, मैं आपको कंफ्यूज कर रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, ऐसा ही, ये आगे का कॉन्सेप्ट है, मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है। तो अ कर्व शोइंग द मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। वो जो गिवन रिसोर्सेज, गिवन टेक्नोलॉजी, उससे क्या क्या बन सकता है, कितना बन सकता है, ठीक है। assumes resources are fully utilized, technology remains constant, resources are not equally efficient for both goods। मतलब अगर आपने उस आटे से पराठे ही बना लिए, वो आटा से अगर आपने 20-30 पराठे बना दिए तो आपने रोटी तो बनाई नहीं, 0 रोटी। अब आप 10 पराठा, एक पराठा त्यागोगे एक रोटी बनाने को, सॉरी, हाँ, 2 पराठे त्यागोगे या 1 पराठा त्यागोगे 2 रोटी बनाने के लिए। इसका ना एग्जाम्पल दूँ मैं तुम्हें, रुक जाओ, ये देखो मैंने दिया हुआ, ठीक है। अब ये था कॉम्बो ABCDEFG, कहाँ तक है? हाँ, F तक। वीट, राइस, MRT, जो वीट और राइस, अब आपके पास उतने टेक्नोलॉजीज, उतनी रिसोर्सेज है, ठीक है। अब आपने 15 राइस बनाए और 0 वीट बनाई,
15 kg राइस बना, 0 वीट बना, ठीक है। अब 14 आपने एक मतलब 1 kg राइस, मतलब हाँ एग्जाम्पल के टाइप से समझ लो, एक राइस को त्यागा तो जिससे 1 kg वीट बन जाए, ठीक है। अब आपने 12 मतलब 2 kg, सॉरी 2 राइस को त्यागा तो 2 वीट बन जाए, जिससे 2 वीट बन जाए। और आपने फिर 9 को त्यागा, ठीक है, 9 को त्यागा जिससे 9 को त्यागा, सॉरी कन्फ्यूज हो गई। 9 मतलब आपने 7 राइस को त्यागा और 3 वीट बनाने के लिए। फिर आपने 5 उसको त्यागा, 4 को त्यागा 4 राइस बनाने के लिए, ठीक है। फिर आपने राइस 0 हो गए आपके, मतलब आपने 5 राइस त्याग दिए 5 वीट बनाने के लिए, ठीक है। समझ में आई? तो ये ग्राफ उसी को बता रहा है, ये जो ग्राफ है ना ये उसी को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। ये जो चीज़ें है ना ये याद रखना है। कहाँ होगा ये जूम के लिए है, फोन है ये शायद, ठीक है। तो द प्रोडक्शन तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। ये जो है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटिंग क्या होता है, तो कर्व शोइंग द मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड with the given resources and technology। फिर अगर पूछा कि क्या है उसकी चीज़, तो लिखना assumes resources are fully मतलब जो resources है वो fully यूटिलाइज होते हैं, तो assumes resources are fully utilized, ये assume कर रहा है। technology remains constant and resources are equally and efficiently utilized, ठीक है। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर बोथ गुड्स। हाँ, रिसोर्सेज दोनों इक्वली, मतलब दोनों गुड्स के लिए वो अच्छे से, अगर देखो हमने ये पढ़ा था ना, ये देखो अगर हमने 15 पूरे राइस बना लिए तो फिर 0 वीट बनेंगे, ठीक है, दोनों के। और अगर हमें पूरे वीट बनाने तो फिर 0 राइस बनेंगे, है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉट एफिशिएंट फॉर 2 गुड्स, दोनों गुड्स के लिए इतना एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया? ये समझ में आया, ठीक है। फिर MRT, देखो ये MRT जो है ना, ये देखो MRT क्या होती है, यूनिट्स ऑफ सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ गेन। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल 40, मतलब 15 में से 15 में से आपने 40, मतलब 1 आपने सेक्रीफाइस किया, मतलब जो सेक्रीफाइस किया 1, ठीक है। यूनिट्स ऑफ सेक्रीफाइस कितना किया 1, गेन कितना किया 1, तो 1/1, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। इसमें वही लिखा है कि यूनिट्स ऑफ सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ गेन, जितना आ रहा है वो लिखा है, ठीक है। MRT यही होती है। MRT मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। MRT एक रेशियो होती है ऑफ द अमाउंट ऑफ 1 गुड। देखो MRT इज द रेशियो, मतलब marginal rate of transformation is the ratio of the amount of 1 good sacrificed to gain an additional unit of another commodity, another good। MRT होती है units of sacrifice divided by units of gain, ठीक है। कितना आपने सेक्रीफाइस किया और कितना आपको मिला, कितना आपने गेन किया, ठीक है। नोटिस हाउ MRT इज इंक्रीजिंग 1 to 5। MI देखो 1 से 5 MRT इंक्रीज हो रही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मतलब आप सेक्रीफाइस ज़्यादा कर रहे हो, यू आर सेक्रीफाइसिंग मोर एंड गेन जो हो रहा है वो लेस हो रहा है, ठीक है। दिस रिफ्लेक्ट्स इंक्रीजिंग सेक्रीफाइस, ये क्या रिफ्लेक्ट्स कर रहे हैं कि आप सेक्रीफाइस बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो नोटिस हाउ MRT बढ़ती तब है जब आप सेक्रीफाइस ज़्यादा करते हो,
MRT घटेगी, डिक्रीज कब होगी, जब आप सेक्रीफाइस कम करोगे, ठीक है। तो ये नोटिस हाउ MRT इज इंक्रीजिंग 1 to 5, दिस रिफ्लेक्ट्स इन MRT इंक्रीजिंग ऑफ सेक्रीफाइसिंग ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। कुछ भी ना समझ में आ रहा है प्लीज़ कमेंट में लिख देना, मैं बता दूँगी। और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इधर कहाँ से आ गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है यहाँ पे, हाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मैं बता देती हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, ये हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे, ये पता नहीं मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी मैं इसमें बता देती हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई की एक तरफ आपकी ये किताब रखी है और दूसरी तरफ फ़ोन रखा है, ठीक है। तो ये किताब और दूसरी तरफ फ़ोन, ठीक है। अब आपने क्या सेक्रीफाइस किया कि या तो आप पढ़ोगे या तो आप फ़ोन देखोगे। अगर जैसे मैंने बुक ली, मतलब मैं पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मैंने किताब ली और फ़ोन को मैंने साइड रख दिया, चार्जिंग पे लगा दी, जो कर दिया, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ, फ़ोन। जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था वो मैंने छोड़ दिया, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन जाने दिया, मुझे क्या ज़रूरत थी, पढ़ाई, ठीक है। तो ये होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। अगर तभी भी नहीं समझ में आया तो मैं कल और अच्छे से समझा दूँगी, मैं एक एग्जाम्पल लाऊंगी अच्छा वाला, तो मैं समझाऊँगी। वो शायद पता नहीं मैंने स्लाइड में गलती से लिख दिया शायद, ठीक है। तो अब ये जो शेप होते हैं, जो अपने PPC PPF के शेप देखे, वो कॉनकेव भी होते हैं, कॉन्वेक्स भी होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं। मतलब ये ऐसा भी होता है, ये ऐसा भी होता है, और ये ऐसा भी होता है, तीनों चीज़ें होती है। कॉनकेव भी होता है, कॉन्वेक्स भी होता है, स्ट्रेट लाइन भी होता है, ठीक है। तो कॉनकेव शेप कब होता है, जब MRT जो है वो बढ़ रही होती है, MRT जो है वो बढ़ रही होती है। कॉन्वेक्स जब होता है जब MRT डिक्रीज होने लगती है, और कांस्टेंट जब होता है जब MRT कांस्टेंट होती है, ठीक है, MRT इक्वल होती है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो हम पढ़ते हैं। कॉनकेव शेप ड्यू टू इंक्रीजिंग MRT बढ़ता है तो कॉनकेव शेप होता है। दिस हैपन बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्ट। ये इसलिए होता है क्योंकि दोनों गुड्स को बनाने के लिए रिसोर्सेज इतने सफिशिएंट नहीं है। कॉन्वेक्स मतलब कि MRT डिक्रीज हो रहा है when the sacrifice of the other good decreases of very additional unit के, मतलब सैक्रिफाइस डिक्लाइन होने लगता है। सैक्रिफाइस, इसमें सैक्रिफाइस जो इंक्रीजिंग MRT में सैक्रिफाइस ज़्यादा हो रहा था, इंक्रीजिंग सैक्रिफाइस हो रहा था, इसमें सैक्रिफाइस कम हो रहा है और इतना गेन नहीं हो पा रहा है। स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ड्यू टू कांस्टेंट MRT occurs if resources are equally efficient in producing, मतलब दोनों गुड्स के लिए, मतलब दोनों गुड्स के लिए एफिशिएंट है, दोनों गुड्स अच्छे से बन पा रहे हैं, इसका भी 5 बन पा रहा है, इसका भी 5 बन पा रहा है, तो मतलब दोनों गुड्स के लिए जो भी रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी है वो सफिशिएंट है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द सेम एज MRT। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी MRT की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है MRT की तरह ही है, MRC जो है वो MRT की तरह ही है, ठीक है। So this all was for today. Now thank you for paying attention, and if you have any doubt please write in the comment below. I will solve everything and I will give you reply also. So just don't forget to subscribe, share and subscribe my channel for more updates. Now
I have brought some questions. Exam focused important questions, must know questions. Okay, this is based on MP board only. Okay, so differentiate between micro and macroeconomics, 4 मार्क्स का आता है. एक्सप्लेन हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम विद एग्जाम्पल. जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो नहीं, दूसरा एग्जाम्पल यूज़ करके आप कर लेना. अपना दिमाग भी लगाना थोड़ा. तो एक्सप्लेन दी हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम जो है एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना 3 मार्क्स में आता है. और वाई इज दी पीपीसी कॉन्केव क्यों है ओरिजिन से, ये भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है. क्यों होती है पीपीसी कॉन्वेक्स या पीपीएफ कॉन्केव, कंफ्यूज नहीं होना है पीपीसी और पीपीएफ में. पीपीसी मतलब भी, हाँ, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि पीपीसी पीपीएफ में फ्रंटियर कर्व सॉरी क्या बोलती है सर, फ्रंटियर कर्व, पीपीसी पीपीएफ और फ्रंटियर कर्व, इन सब में ना कंफ्यूज मत होना, ठीक है. तो कोई भी डाउट है तो मेरे से बोलो. पीपीसी पीपीएफ सब सेम है. तो वाई इज द पीपीसी कॉन्केव, क्यों पीपीसी कॉन्केव है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑफ एमआरटी और ज़्यादा सेक्रीफाइस हो रहा है, इंक्रीजिंग इन द सेक्रीफाइस एंड इंक्रीजिंग इन द एमआरटी, तो इसलिए पीपीसी इज कॉन्केव. ये 2 मार्क में आता है, तो ये याद रखना. फिर ट्रू और फॉल्स में पीपीसी शिफ्ट्स आउटवर्ड ड्यू टू टेक ग्रोथ. पीपीसी बाहर की तरफ होता है क्योंकि टेक ग्रोथ होता है, टेक्नोलॉजी ग्रोथ होती है. ट्रू. देखो ये आज तुम्हें समझ नहीं आएगा, तो मैं कल समझाऊंगी तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, वो मैं बताऊंगी. सेकेंड, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस थ्योरी. माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी बोलते हैं ना, मैंने बताया था. ट्रू. इंडिया इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. नो, इंडिया इज मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है, तो इट्स ऑल डन. So questions I have given. Thank you for your attention on day 1. Don't forget to subscribe, share my channel, like my channel for more updates. Humanities, MP Board, Class 12, Microeconomics. Love you all. A heart for you. Love you all. Bye bye. Cha 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 ta ta ta. Bye bye bye. Love you.